اسلام آباد کی ایک خوبصورت شام تھی۔ ارسلان شاہ اپنے دفتر کی بڑی کھڑکی کے سامنے کھڑا شہر کی روشنیاں دیکھ رہا تھا۔ سر، آپ پھر سوچوں میں گم ہیں، کہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ بابر نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ ارسلان نے اسے گھورا۔ بابر، اگر تم نے ایک بار پھر ایسی فضول بات کی تو تمہاری تنخواہ آدھی کر دوں گا۔ بابر فوراً سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سر، محبت کا ذکر واپس لیتا ہو، لیکن تنخواہ والا فیصلہ بھی واپس لے لے۔ ارسلان ہنس پڑا۔ اسی دوران ایک اہم بزنس کانفرنس میں جانے کا وقت ہو گیا۔ ماہ نور ایک خفیہ دفتر میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک فائل رکھی تھی۔ ایجنٹ M17، یہ نیا مشن انتہائی حساس ہے۔ اس کے سینئر آفیسر نے سنجیدگی سے کہا۔ سر، ٹارگٹ کون ہے؟ فہد ملک۔ ہمیں شک ہے کہ وہ کچھ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ ماہ نور نے فائل کھولی۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظریں ایک تصویر پر جم گئیں۔ تصویر میں فہد کے ساتھ ارسلان بھی کھڑا تھا۔ یہ دوسرا شخص کون ہے؟ ارسلان شاہ۔ بظاہر بے قصور ہے، لیکن ہمیں یقین کرنا ہوگا، ثابت نہیں۔ ماہ نور نے سر ہلایا۔ میں سچ تک پہنچ کر رہوں گی۔ اسی رات ایک بزنس تقریب میں ارسلان لوگوں سے مل رہا تھا جب اچانک ایک لڑکی اس سے ٹکرا گئی۔ اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ گر گیا۔ مجھے معاف کیجیے، لڑکی نے گھبرا کر کہا۔ کوئی بات نہیں، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، ارسلان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ماہ نور نے پہلی بار غور سے ارسلان کو دیکھا۔ شاید یہ اتنا برا نہیں جتنا فائلوں میں لگ رہا تھا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ دوسری طرف سائمہ بھی تقریب میں پہنچ چکی تھی۔ اس نے ماہ نور کو ارسلان کے ساتھ دیکھا تو فوراً قریب آ گئی۔ واہ واہ، ابھی 5 منٹ پہلے تو تم ملک بچانے نکلی تھی، اور اب ہیرو کے ساتھ کافی گرائی جا رہی ہو۔ ماہ نور نے اسے گھورا۔ خاموش رہو۔ سائمہ ہنس پڑی۔ میں خاموش رہ سکتی ہوں، لیکن تمہارے چہرے کی مسکراہٹ نہیں۔ ارسلان نے حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ آپ دونوں ہمیشہ ایسے ہی لڑتی رہتی ہے؟ سائمہ فوراً بولی۔ جی نہیں، کبھی کبھی ہم سانس بھی لے لیتے ہیں۔ ارسلان زور سے ہنس پڑا، جبکہ ماہ نور نے ماتھا پکڑ لیا۔ فہد ملک ایک تاریک کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے کچھ خفیہ دستاویزات رکھی تھی۔ اس نے فون اٹھایا۔ کام شروع کرو، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ جا رہا ہوں۔ اسی شام ماہ نور ایک کیفے میں بیٹھی اپنی خفیہ رپورٹ تیار کر رہی تھی۔ سائمہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی، سائمہ نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ تم ایک خطرناک مشن پر ہو یا رومانوی فلم میں؟ ماہ نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تم ہر دوسری بات میں ارسلان کا نام لے رہی ہو۔ میں صرف اپنے مشن کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ سائمہ ہنس پڑی۔ ہاں ہاں، اور میں پاکستان کی صدر ہوں۔ ماہ نور نے اسے گھورا۔ اچانک کیفے کا دروازہ کھلا اور اندر ارسلان داخل ہوا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائی۔ کچھ لمحوں کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ ارسلان مسکراتے ہوئے ان کی میز کے قریب آیا۔ لگتا ہے قسمت بار بار ہمیں ملوانا چاہتی ہے، ماہ نور نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ یا شاید یہ صرف اتفاق ہے۔ اگر یہ اتفاق ہے تو کافی دلچسپ اتفاق ہے، ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سائمہ فوراً بولی۔ جی بالکل، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ ماہ نور نے میز کے نیچے سے اسے لات ماری۔ آہ! سائمہ چیخی۔ ارسلان حیران ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میرے جذبات زخمی ہو گئے ہیں۔ ارسلان پہلی بار دل کھول کر ہنس پڑا۔ اسے محسوس ہوا کہ ماہ نور باقی لڑکیوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس کی سادگی، اعتماد اور خاموشی میں ایک عجیب کشش تھی۔ فہد ملک ایک گودام میں موجود تھا۔ اس کے سامنے چند لوگ کھڑے تھے۔ ارسلان کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، فہد نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر اسے ہمارے اصل کاروبار کا علم ہو گیا تو سارا کھیل ختم ہو جائے گا، ایک آدمی بولا۔ لیکن سر، پولیس کچھ سرگرم دکھائی دے رہی ہے۔ فہد کی آنکھوں میں خطرناک چمک آ گئی۔ پولیس نہیں، کوئی اور ہمارے قریب پہنچ رہا ہے۔ کون؟
अभी नहीं जानता, लेकिन जो भी है उसे रास्ते से हटाना होगा। इसी रात महानूर खुफिया तौर पर फहद के गोदाम के करीब पहुंची। वो दूर से तस्वीरें ले रही थी। तभी एक मुसल्लह शख्स ने उसे देख लिया। वो रही। महानूर फौरन मुतहरिक हो गई। गोली चलने की आवाज गूंजी। वो दीवार के पीछे छलांग लगा गई। चंद लम्हों बाद वो अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से निकल गई, मगर जाते जाते एक अहम दस्तावेज उसके हाथ लग चुकी थी। अगले दिन महानूर हेडक्वार्टर पहुंची। उसने दस्तावेज अपने सीनियर ऑफिसर के सामने रखी। ऑफिसर ने फाइल खोली। पहला सफ़ा देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये नाम यहां कैसे हो सकता है? महानूर चौंक गई। सर, क्या हुआ? ऑफिसर ने गहरी सांस ली। ये मामला हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मतलब? फहद अकेला नहीं है। ऑफिसर खामोश हो गया। चंद लम्हों बाद बोला, वो शख्स जिसे पूरा मुल्क एक इज्जतदार कारोबारी शख्सियत समझता है। महानूर की आंखें फैल गईं। कौन? ऑफिसर ने फाइल बंद कर दी। अभी वक्त नहीं आया। अरसलान अपनी बालकोनी में खड़ा था। हल्की हवा चल रही थी। उसके जहन में सिर्फ एक ही चेहरा था, महानूर। वो पहली बार किसी के बारे में इतना सोच रहा था। तभी बाबर आया। सर, अगर आप इजाजत दें तो एक मशवरा दूं? नहीं, फिर भी दूंगा। अरसलान मुस्कुराया। कहो। सर, अगर लड़की पसंद है तो बात कर लीजिए। अगर वो इनकार कर दे? बाबर पहली बार संजीदा हो गया। सर, जिंदगी में कुछ मौके ऐसे होते हैं जो दोबारा नहीं मिलते। अरसलान खामोश हो गया। शायद बाबर पहली बार अक्ल की बात कर रहा था। सुबह का वक्त था। महानूर एक कैफे में बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी। हकीकत में वो फहद मलिक के बारे में नई मालूमात इकट्ठी कर रही थी। अचानक सामने वाली कुर्सी खिसकने की आवाज आई। उम्मीद है इस बार काफी नहीं गिराऊंगा। महानूर ने सर उठाया। सामने अरसलान मुस्कुराता हुआ खड़ा था। महानूर के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। और उम्मीद है इस बार आप मेरी मेज पर कब्जा नहीं करेंगे। अरसलान बैठ गया। ये तो ज्यादती है। मैंने सोचा था हमारी अब जान पहचान हो चुकी है। जान पहचान और दोस्ती में फर्क होता है, महानूर ने जवाब दिया। अरसलान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तो फिर आज से दोस्ती कर लेते हैं। महानूर हैरान हुई। इतनी आसानी से? दोस्ती मुश्किल क्यों होनी चाहिए? अरसलान मुस्कुराया। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आप बाकी लोगों जैसी नहीं हैं। आपके अंदर कोई ऐसी बात है जो इंसान को बार बार आपसे बात करने पर मजबूर कर देती है। पहली बार महानूर चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। वो खतरनाक मुजरिमों का सामना कर सकती थी, गोलियों के दरमियान खड़ी हो सकती थी, मगर अरसलान की सादा बातें उसे बेचैन कर देती थी। शुक्रिया, उसने धीरे से कहा। अरसलान मुस्कुरा दिया। इसी दौरान कैफे का दरवाजा खुला। साइमा अंदर दाखिल हुई और किस्मत से बाबर भी इसी वक्त वहां पहुंच गया। बाबर ने साइमा को देखते ही कहा, ओह नहीं, ये आफत फिर आ गई। साइमा फौरन पलटी। और ये कौन सा शाही तोता आ गया? मैं शाही तोता नहीं, बिजनेसमैन का पर्सनल असिस्टेंट हूं, बाबर ने फख्र से कहा। साइमा हंस पड़ी। पर्सनल असिस्टेंट? मुझे तो ज्यादा से ज्यादा चपरासी लगते हो। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। तुम्हें पता है मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं। हाँ, शक्ल से ही लग रहा है। अरसलान और महानूर दोनों हंसी रोकने लगे। बाबर गुस्से में बोला, देख लेना, एक दिन तुम मुझसे माफी मांगोगी। साइमा ने फौरन जवाब दिया, और इस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा। फहद मुल्क के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मुझे वो लड़की चाहिए, उसने मीज पर हाथ मारते हुए कहा, जिसने हमारे गोदाम की तस्वीरें ली। एक आदमी बोला, सर अभी तक उसकी शनाख्त नहीं मिली। फहद की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। तो तलाश करो।
और अगर वो वाकई एजेंट हुई तो? फहद हंस पड़ा। फिर उसकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होगी। महानूर एक अहम मुलाकात के लिए जा रही थी। वो अपनी गाड़ी में बैठी थी जब उसे महसूस हुआ कि एक काली गाड़ी मुसलसल उसका पीछा कर रही है। उसने रफ्तार बढ़ाई, मगर पीछे वाली गाड़ी भी तेज हो गई। लगता है फहद के लोग हैं, महानूर ने खुद से कहा। अचानक सामने से एक और गाड़ी आ गई। रास्ता तकरीबन बंद हो चुका था। महानूर ने फौरन गाड़ी मोड़ी, मगर दूसरी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के किनारे जा लगी। चंद मुसल्लर अफराद बाहर निकल आए। आज बचकर नहीं जा सकती, एक आदमी ने कहा। महानूर फौरन गाड़ी से बाहर निकली। उसने एक शख्स को लात मारी, दूसरे के हाथ से हथियार छीन लिया, मगर दुश्मन बहुत ज्यादा थे। एक शख्स पीछे से उसकी तरफ बढ़ा। महानूर ने पलट कर देखा, लेकिन अब बचने का रास्ता नहीं था। एक तेज रफ्तार गाड़ी वहां आकर रुकी। दरवाजा खुला और अरसलान बाहर निकला। महानूर, वो जोर से चलाया। महानूर हैरान रह गई। तुम यहां? अरसलान ने जवाब देने के बजाय एक हमला आवर को जोर से धक्का दिया। बाद में बात करेंगे, वो बोला। दोनों फौरन गाड़ी की तरफ भागे। अरसलान ने गाड़ी स्टार्ट की और चंद लम्हों में वहां से निकल गया। काफी देर बाद वो एक महफूज जगह पर पहुंच चुके थे। महानूर खामोश बैठी थी। अरसलान ने फिक्रमंद अंदाज में पूछा, तुम ठीक हो? हाँ। ये लोग कौन थे? महानूर चंद लम्हे खामोश रही। मुझे नहीं मालूम। अरसलान ने उसे गौर से देखा। तुम झूठ बोल रही हो। महानूर चौंक गई। क्या मतलब? तुम आम लड़की नहीं हो। अरसलान की आवाज संजीदा थी। तुम हर खतरनाक सूरत-ए-हाल में ऐसे रद्द-ए-अमल देती हो जैसे तुम्हें पहले से तरबियत दी गई हो। महानूर के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या अरसलान को शक हो गया था? इसी वक्त फहद के आदमियों को महानूर की गाड़ी से एक चीज मिल गई, एक खुफिया शनाख्ती कार्ड। वो फौरन फहद के पास पहुंचे। फहद ने कार्ड हाथ में लिया। चंद लम्हों बाद उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट फैल गई। तो आखिर तुम मिल ही गईं, उसने धीरे से कहा। एजेंट महानूर। कमरे में खामोशी छा गई। फहद ने मेज पर मक्का मारा। अब खेल मजीद दिलचस्प होगा। रात के आखिरी पहर फहद मलिक अपने खुफिया दफ्तर में बैठा था। उसके सामने महानूर का खुफिया शनाख्ती कार्ड रखा था। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। फहद ने कार्ड को गौर से देखा और फिर खतरनाक अंदाज में मुस्कराया। तो तुम हो एजेंट महानूर। इसकी आवाज में नफरत और दिलचस्पी दोनों शामिल थी। उसने मेज पर उंगलियां बजाते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि आखिर कौन है जो मेरे रास्ते में बार बार आ रहा है। अब राज खुल गया। सामने बैठे आदमी ने पूछा, सर अब क्या हुक्म है? फहद अपनी कुर्सी से उठा। अब शिकार शुरू होगा। क्या हम उसे खत्म कर दें? फहद ने सर हिलाया। नहीं। क्यों सर? फहद की आंखों में अजीब चमक आ गई। क्योंकि कभी कभी दुश्मन को मारने से ज्यादा मजा उसे तड़पाने में आता है। दूसरी तरफ अरसलान अपने कमरे में मौजूद था, मगर आज फिर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके जहन में बार बार वही मंजर आ रहा था जब महानूर हमला आवरों के दरमियान खड़ी हुई थी। वो बेख्तियार मुस्कराया। कितनी अजीब लड़की हो तुम, उसने आहिस्ता से कहा। तभी बाबर कमरे में दाखिल हुआ। सर आप अभी तक जाग रहे हैं? हाँ। बाबर कुर्सी पर बैठ गया। फिर वही लड़की? अरसलान खामोश हो गया। बाबर ने पहली बार संजीदगी से पूछा, क्या आप वाकई उन्हें पसंद करने लगे हैं? कुछ लम्हों तक खामोशी रही। फिर अरसलान ने धीरे से जवाब दिया, शायद शायद मैंने जिंदगी में बहुत लोगों को देखा है बाबर। अरसलान खिड़की की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन महानूर जैसा कोई नहीं देखा। इसमें ऐसी क्या खास बात है? अरसलान हल्का सा मुस्कुराया। जब वो मेरे सामने होती है तो दुनिया की हर आवाज खामोश हो जाती है। बाबर ने फौरन रुमाल निकाला। सर मैं जज्बाती हो गया हूं,
बाबर, अच्छा, मगर मुबारक हो। अगली सुबह माहनूर हेडक्वार्टर पहुंची। उसके सीनियर ऑफिसर पहले ही परेशान नजर आ रहे थे। एजेंट माहनूर, हमारे पास बुरी खबर है। माहनूर चौंक गई। क्या हुआ सर? तुम्हारी शनाख्त लीक हो चुकी है। माहनूर के कदम जैसे रुक गए। क्या? फहद मलिक को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है। कमरे में खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद माहनूर ने मजबूत लहजे में कहा, तो फिर मिशन खत्म करने के बजाय और तेज करना होगा। ऑफिसर ने हैरत से उसे देखा। तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? जी सर, तुम्हारी जान खतरे में है। माहनूर ने पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया। पाकिस्तान के लिए जान देना भी पड़े तो पीछे नहीं हटूंगी। अरसालान अपने दफ्तर में कुछ पुरानी फाइलें देख रहा था। अचानक एक बंद लिफाफा उसके हाथ लगा। लिफाफे पर उसके मरहूम वालिद का नाम लिखा था। अरसालान हैरान हो गया। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक खत मौजूद था। उसने पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अल्फाज उसके नजरों से गुजर रहे थे, उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। खत में लिखा था, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं। अरसालान, मैं तुमसे एक सच छुपा कर गया हूं। फहद मलिक पर कभी मुकम्मल एतमाद मत करना। वो शख्स नहीं जो खुद को जाहिर करता है। मेरे पास उसके खालिफ ऐसे सबूत थे जो मुल्क दुश्मन अनासिर तक पहुंचते थे। मुझे डर है कि मेरी मौत भी एक हादसा नहीं थी। अरसालान के हाथ कांपने लगे। ये कैसे मुमकिन है? उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसके वालिद की मौत के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। इधर फहद मलिक को भी एक खबर मिली। सर, इरसालन को कुछ पुरानी फाइलें मिली हैं। फहद चौंक गया। कौन सी फाइलें? शायद उसके वालिद की। फहद चंद लम्हे खामोश रहा। फिर उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। तो वक्त आ गया है। किस चीज का? इरसालन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का। रात इरसालन अपनी गाड़ी में घर जा रहा था। उसके जहन में सिर्फ अपने वालिद का खत घूम रहा था। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक उसकी गाड़ी के सामने आ गया। इरसालन ने ब्रेक लगाई, मगर बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम, शदीद तसादुम की आवाज पूरे इलाके में गूंज गई। गाड़ी कई बार उलटती हुई सड़क से नीचे जा गिरी। चंद लम्हों में हर तरफ खामोशी छा गई। माहनूर के फोन पर एक कॉल आई। एजेंट माहनूर। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई। एजेंट माहनूर, अरसलन शाह की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। माहनूर के हाथ से फोन तकरीबन गिर गया। क्या? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कहाँ है? मगर अगले ही लम्हे कॉल कट गई। माहनूर की आंखों में पहली बार खौफ वाज़ेह नजर आया। या अल्लाह, अरसलन को कुछ न हो। और वो फौरन अस्पताल की तरफ रवाना हो गई।